A very good afternoon, dear students, dear listeners, dear followers, and dear friends. Now I came back again to upload a new video on the topic the Ring episode or the Ring story. As you know, the topic is concerned with the title or play The Merchant of Venice, penned by or written by William Shakespeare. I'll upload this video as the previous videos I have uploaded in both languages, in Hindi and English both, so that you can understand the things or content of the video and you can learn how to write the answer in English. Those who didn't subscribe the channel, please subscribe it and share it more and more, so that you may keep update yourself for next upcoming further videos of the channel. प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों और साथियों, आप सभी को मैं नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। आपके सामने प्रस्तुत हूं आज के इस नए विषय के साथ, और आज के इस नए वीडियो में हम और आप बात करेंगे एक ऐसे किरदार के बारे में, एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो एक बहुत मुख्य एपिसोड था और एक सब एपिसोड था, सब पूरा एक प्लान था, प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। और इस एपिसोड का नाम है रिंग एपिसोड। आज हम और आप बात करेंगे रिंग एपिसोड की। जिन साथियों ने और मित्रों ने और छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो से आप सभी लोग जो भी हमारे माध्यम से ज्ञान आपको दिया जा सकता है, आप उसको अर्जित कर सकें, उसको ग्रहण कर सकें। तो आइए प्रिय छात्रों, हम और आप शुरू करें आज के इस टॉपिक को, आज की इस बात को, जिस पर बात होगी रिंग एपिसोड पर। रिंग एपिसोड जो कि एक महान और एक बड़ी घटना है प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। एंड एट द फर्स्ट आई विल स्टार्ट और कन्वे द थिंग्स टू यू इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट in Hindi. As we know, after having the right casket, Bassanio won Portia's hand as his wife, and being very happy, Portia presented him or gifted him a ring and made him a promise not to give up or not to depart this ring from his finger. If Bassanio does this, it means he doesn't love Portia more or anyhow. Bassanio made this promise to Portia that in any condition, circumstances or in negative situations, he will never depart the ring from his finger, and he would be very loyal and faithful towards his wife, his beloved, towards Portia. And after that, when Portia and Bassanio decided to marry to each other, Portia's maid servant Nerissa and Bassanio's servant or French Gratiano was or were in love with each other. Next, Nerissa presented a ring or gifted a ring to Gratiano and made same promise as Portia made to Bassanio, and Gratiano made promise to Nerissa that he will never depart this ring from his finger to show his loyalty and faithfulness or love towards her. It means we can say that this ring episode is a loving episode or creates a loving feelings towards each other, those who love to each other, those who love to their beloved or lover,
and this type the ring presented or gifted by the beloved to their lovers. And after that, in the court of the Duke, when Antonio and Shylock were presented before each other, and Shylock made plan to kill Antonio anyhow, as he made sign the bond to Antonio when he gave the 3,000 ducats to him as a debt amount. Portia appeared in the court on the behalf of his learned lawyer or skilled brother Salerio, and made or appealed to the Duke that she would participate in this trial scene, or in this trial, or in this case, and she would give something, the clue, or about the things how Shylock made a conspiracy against Antonio, and on Salurio's behalf she had appeared before Duke, and she handed over a letter to Duke that the Duke would give permission to Portia to proceed. Now Portia proceeded, and at last the Portia won the case in favor of Antonio. As everything was over, Shylock was defeated and Antonio won. Portia started their journey to reach Belmont for very soon, because she wanted to reach Belmont before reaching there Bassanio, Gratiano with Antonio. And Portia started their journey to Belmont with Nerissa. Behind them, Bassanio suddenly called Portia and requested her to accept something, or 3,000 ducats as a fee amount. Portia rejected his offer. Bassanio imposed Portia to take something as a remembrance amount, so that it would be a thankful amount towards her from the side of Bassanio or Antonio, because she did the very great thing by appearing in the court to save Antonio's life in clutches of Shylock. Again, Portia rejected his offer, but anyhow, when Bassanio imposed Portia to take something as a remembrance amount, then Portia remarked here to Bassanio, if he wanted to give her something, then she would charge, or she would take his ring of his finger and Antonio's gloves. Antonio just gave his gloves to Portia, but Bassanio rejected her request that he could not give the ring to her, because Bassanio remarked there it was the gift of his beloved wife or lover. Other thing Bassanio remarked here, that he could purchase or buy a costliest ring, or the costliest ring of the Venice city to give her as a present or gift, but Portia rejected his offer. And then Portia told or informed Bassanio that the thing, just like first how to convey a beggar to beg, and when he starts begging, then how to reply to a beggar. Bassanio ashamed on his behavior, but he could do nothing, because he couldn't give his ring to Portia, and Portia moved ahead
to reach Belmont with Nerissa. After that, Antonio tried to teach Bassanio the things he should understand, because he stopped Portia by saying something or by calling her behind. So he should give the ring to Portia as she demanded. Anyhow, Bassanio agreed to give the ring to Portia of his, and he gave the ring to Gratiano and ordered him to run behind Portia and now gift the ring to her just soon, lest she should leave the place. Now Gratiano handed over the ring of Bassanio to Portia, and as Gratiano gave ring to her, Portia's maid servant Nerissa demanded Gratiano's ring, which he had put in his finger. Now Gratiano handed over the ring of his finger to Nerissa, and after that Nerissa with Portia started their journey to reach Belmont very soon. As soon as possible they could reach there. Portia and Nerissa reached Belmont after some time. Bassanio, Gratiano with Antonio reached Belmont. Nerissa and Jessica welcomed them with Portia, and as Nerissa saw the finger of Gratiano that the ring was missing, she started fighting with arguing him that he had given the ring to another woman and he was unfaithful follower or lover. Gratiano tried to console the things to Nerissa, but Nerissa didn't accept any view or any mark given by Gratiano. Hearing the noise between Gratiano and Nerissa, Portia appeared there and asked the reason of their fighting with each other. Nerissa explained the things in detail to Portia. First, Portia claimed that such kind of default or mistake, Bassanio couldn't do this, and Portia demanded the ring to Bassanio what she had given to him. Bassanio told her everything about the incident or event, what happened in the court, and how he could give the ring to the learned lawyer who saved Antonio's life. When Portia and Nerissa didn't believe on Bassanio's and Gratiano's views or talk, then Antonio interfered in their talking and informed Portia and Nerissa that everything was correct or fact as Bassanio and Gratiano told them or informed them. After that, Portia with Nerissa went inside and returned back with new rings and gave it to Bassanio and Gratiano. Being saw the ring or seen the ring, Bassanio and Gratiano became totally surprised and remarked that it was the same or it is the same as they have given to the learned lawyer and her or his clerk. After that, Portia handed over the ring, and after that she handed over
द लेटर ऑफ सेलेरियो his or her cousin brother, a learned or skilled lawyer. On his behalf, Portia appeared in the court being disguised as a lawyer and Nerissa as her clerk. And everything was opened here that in the court Portia appeared as a lawyer and saved Antonio's life. And this, the ring episode, happened इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। प्रिय छात्रों, हम और आप बात कर रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक दूसरे एपिसोड, जिस एपिसोड का नाम है रिंग एपिसोड। और इस रिंग एपिसोड में घटना की शुरुआत और इस रिंग एपिसोड की जो पूरी शुरुआत होती है वो इस तरीके से होती है कि जब बेसेनियो सही कास्केट का चुनाव कर लेता है और पोर्शिया को अपनी पत्नी के रूप में जीत लेता है, तो पोर्शिया खुशी का इजहार करते हुए उसको एक रिंग देती है, एक अंगूठी देती है और उससे ये वादा लेती है कि इस अंगूठी को तुम अपनी उंगली से कभी हटाओगे नहीं, उतारोगे नहीं, और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम ये साबित कर दोगे कि तुम बेवफा हो, तुम वफादार नहीं हो। इसी के साथ पोर्शिया की नौकरानी नेरिसा ग्रेशियनियो से कहीं ना कहीं प्यार करने लगती है, लेकिन वो ये कहती है ग्रेशियनियो से कि यदि पोर्शिया और बेसेनियो की शादी होती है तो वो दोनों भी विवाह कर लेंगे। और इसके पश्चात नेरिसा भी ग्रेशियनियो के अंगूठी देती है और उससे भी इसी प्रकार का एक वादा ले लेती है। ग्रेशियनियो भी नेरिसा से वादा करता है कि कभी भी इस अंगूठी को नहीं उतारेगा और वो हमेशा अपनी वफादारी और लॉयल्टी और फेथफुलनेस उनके प्रति साबित करेगा और एक अच्छा पति साबित होकर दिखाएगा। इस प्रकार से अंगूठियों का जो एक गिफ्टेड था पोर्शिया और नेरिसा की तरफ से बेसेनियो और ग्रेसेनियो के लिए, वो दिया गया। अब बात जब ट्रायल सीन चल रहा था कोर्ट के अंदर, पोर्शिया अचानक से दरबार में एक ड्यूक के सामने उपस्थित हुई थी सेलेरियो के बिहाफ पर कि सेलेरियो नहीं आ सकता है, इसलिए उसने अपने बिहाफ पर पोर्शिया को भेजा है। वो एंटोनियो की तरफ से मुकदमे की पैरवी करना चाहती है और कुछ बातें रखना चाहती है ड्यूक के सामने। ड्यूक उसको परमिशन दे देता है क्योंकि सेलेरियो ने अपने बिहाफ पर एक लेटर साइन करके दिया था कि सेलेरियो उसको भेज रहा है। पोर्शिया क्योंकि वहां भेष बदलकर मौजूद थी, इसलिए कोई भी पोर्शिया को पहचान नहीं सकता था और नेरिसा को भी, क्योंकि वो पोर्शिया का क्लर्क बनकर वहां मौजूद थी। इसके पश्चात तमाम दलीलें होती हैं, तमाम सारी सबूत इकट्ठा करके वहां रखे जाते हैं और अंत में पोर्शिया इस मुकदमे को जीत जाती है, शाइलॉक हार जाता है। मुकदमे को जीतने के बाद पोर्शिया एंटोनियो को, बेसेनियो को जो है वो उनको मुबारकबाद देती है और वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहती है ताकि जल्दी से जल्दी वो बेलमोंट पहुंच सके बेसेनियो, ग्रेशियनियो और एंटोनियो के वहां पहुंचने से पहले, ताकि वो उनका स्वागत भी कर सके। और दूसरी चीज कि उसके एब्सेंस की खबर किसी को ना हो पाए कि यहाँ वकील के रूप में पोर्शिया ही मौजूद थी। इस बात को भी वो छुपाना चाहती थी। पोर्शिया जैसे ही महल के दरबार के या कोर्ट के बाहर निकलती है, बेसेनियो पीछे से उसे आवाज देता है और उससे यह आग्रह करता है कि मैं चाहता हूं कि वो 3000 डुकैट्स जो हैं वो आप फी अमाउंट के रूप में स्वीकार कर लें, गिफ्ट अमाउंट के तौर पर। पोर्शिया इस बात से इनकार कर देती है कि उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई उपहार नहीं चाहिए और वो फिर आगे बढ़ती है। तभी बेसेनियो उस पर थोड़ा सा दबाव बनाता है कि नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो स्वीकार करना चाहिए ताकि इस बात को याद कर सके वो कि उसने इस तरीके से एक मुकदमा जीता था और हमारी तरफ से उपहार स्वरूप उसे कुछ भेंट दी गई थी। अंत में जब पोर्शिया पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है बेसेनियो के द्वारा, तो पोर्शिया अंत में ये कहती है कि ठीक है, यदि बेसेनियो कुछ देना चाहता है तो पोर्शिया कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये जो अंगूठी है, मैं ये अंगूठी चाहती हूँ फीस अमाउंट के रूप में, और एंटोनियो के पास जो ग्लव्स हैं वो ग्लव्स मुझे चाहिए हैं। एंटोनियो तुरंत वो ग्लव्स पोर्शिया को दे देता है, लेकिन बेसेनियो अंगूठी देने से इनकार कर देता है और उसको समझाने का प्रयास करता है कि चूंकि ये अंगूठी मेरी पत्नी के द्वारा, मेरी प्रियतमा के द्वारा मुझे उपहार स्वरूप दी गई है, मैं तुमको ये नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में मैं वेनिस शहर की सबसे महंगी अंगूठी तुमको खरीद कर देने को तैयार हूँ। पोर्शिया इन तमाम चीज़ों से इनकार कर देती है कि यदि वो स्वीकार करेगी तो यही अंगूठी स्वीकार करेगी, अदर उसे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद पोर्शिया बेसेनियो को यह समझाने का प्रयास करती है कि तुम तो बिल्कुल इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो कि पहले एक भिखारी से यह कहा जाए कि कैसे मांगना चाहिए और बाद में जब भिखारी मांगना शुरू करे तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए,
तुमने तो बिल्कुल वही व्यवहार हमारे साथ इस समय किया है। बेसेनियो अपनी बात पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और पोर्शिया और नेरेसा वहां से आगे बढ़ जाते हैं। एंटोनियो उसके बाद बेसेनियो को समझाने का प्रयास करता है कि तुमने ही बेसेनियो पोर्शिया को पीछे से पहले आवाज दी और उसको रोका है, इसलिए अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसको उपहार स्वरूप ये अंगूठी दो, और बाकी चीजें जो आगे हैं वो आगे देखी जाएंगी। किसी तरह से बेसेनियो मान जाता है एंटोनियो की बात को और ग्रेशेनियो को वह अंगूठी थमाता है और उससे कहता है दौड़ कर जाओ और किसी भी तरह जल्दी से उनको ये अंगूठी दे आओ, कहीं वो निकल ना जाएं। ग्रेशेनियो उनके पीछे दौड़ता है और अंत में वो अंगूठी पोर्शिया को दे देता है। पोर्शिया उस अंगूठी को स्वीकार कर लेती है। जैसे ही पोर्शिया उस अंगूठी को स्वीकार करती है, पोर्शिया की क्लर्क जो नेरेसा वहां मौजूद होती है, वो ग्रेशेनियो से कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है मुझे वो अंगूठी चाहिए उपहार के तौर पे। अगर बेसेनियो ने वो अंगूठी मेरी जो गुरु है मेरे, जो जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, यदि उनको दी है उपहार स्वरूप, तो तुम्हें भी मुझे कुछ उपहार स्वरूप देना चाहिए और मैं ये अंगूठी ही उपहार स्वरूप चाहती हूँ। ग्रेशेनियो भी किसी तरीके से वो अंगूठी नेरेसा को दे देता है। उसके बाद ग्रेशेनियो वापस आ जाता है। नेरेसा और पोर्शिया अपनी यात्रा बेलमोंट के लिए शुरू करते हैं, जल्द से जल्द बेलमोंट पहुंचने की कोशिश करते हैं। पोर्शिया और नेरेसा बेलमोंट पहुंच चुके हैं, जेसिका के द्वारा, लॉरेंजो के द्वारा और तमाम जो दूसरे लोग वहां मौजूद थे उनके द्वारा पोर्शिया और नेरेसा का स्वागत किया गया। पीछे से बेसेनियो ग्रेशेनियो के साथ और एंटोनियो के साथ बेलमोंट पहुंचता है। सभी लोग जो मौजूद होते हैं, नेरेसा, पोर्शिया, जेसिका, लॉरेंजो, सब लोग एंटोनियो का, बेसेनियो का और ग्रेशेनियो का स्वागत करते हैं। और तभी नेरेसा की नज़र ग्रेशेनियो की उंगली पर जा पड़ती है और वो देखती है कि ग्रेशेनियो की उंगली में अंगूठी नहीं है, यानी वो खो गई है या नहीं, उसने किसी को दी होगी। तभी नेरेसा के द्वारा ग्रेशेनियो से ये बहस शुरू हो जाती है कि शायद उसने अंगूठी किसी दूसरी स्त्री को दे दी है और वो लॉयल नहीं है, वो फेथफुल नहीं है, वो बेवफा है। ग्रेशेनियो उसको समझाने का प्रयास करता है। इस शोरगुल को सुनने के बाद पोर्शिया भी वहां आ जाती है और पूछती है कि आखिर उन दोनों का किस बात पर झगड़ा हो रहा है। तो नेरेसा पोर्शिया को सारी बात डिटेल में समझा देती है, विस्तृत रूप से उसको समझाने का प्रयास करती है कि ग्रेशेनियो ने वो अंगूठी जो उसने उसे उपहार स्वरूप दी थी वो किसी और अन्य स्त्री को दे दी है। उस बात को सुनने के बाद पोर्शिया पहले तो बहुत पुख्तगी के साथ ये दावा करती है कि बेसेनियो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, और वो बेसेनियो से कहती है कि तुम एक अपनी अंगूठी दिखाओ कि तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते। बेसेनियो तुरंत ही जो है बेसेनियो पोर्शिया को यह समझाने का प्रयास करता है कि वो अंगूठी उसने किसी अन्य स्त्री को नहीं दी है, बल्कि वो अंगूठी उसने दी है उस विद्वान वकील को जिसने अपने अथक प्रयासों से उसके सबसे अच्छे दोस्त एंटोनियो की जान बचाई, उसके प्राणों की रक्षा की। और इस प्रकार से बेसेनियो और पोर्शिया के बीच में भी विवाद शुरू हो जाता है। अंत में एंटोनियो इन तमाम विवादों के बीच में अपनी बात रखता है और सभी को समझाने का प्रयास करता है कि बेसेनियो ग्रेशेनियो के द्वारा जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है और उसमें कोई झूठ शामिल नहीं है। उसके बाद पोर्शिया और नेरेसा अंदर जाती हैं, वहां से दूसरी अंगूठियां लेकर आती हैं और ग्रेशेनियो और बेसेनियो को एक एक अंगूठी पुनः देती हैं। अंगूठी देखकर ग्रेशेनियो और बेसेनियो तुरंत ही सरप्राइज्ड, अचंभे और आश्चर्यमय हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल उसी तरीके की अंगूठी है जैसे कि उनके पास पहले थी, जो उन्होंने उस विद्वान वकील और उसकी क्लर्क को दी है। बेसेनियो तुरंत जो है इस बात को रिमार्क भी करता है। उसके बाद पोर्शिया सेलेरियो के द्वारा जो पत्र होता है उस पत्र को एंटोनियो और बेसेनियो के सामने प्रस्तुत करती है और इस राज को खोल देती है कि सेलेरियो के बिहाफ पर पोर्शिया ही वकील का भेष धारण करके उस कोर्ट और दरबार में उपस्थित थी जिसने एंटोनियो के प्राणों की रक्षा की शाइलॉक के पंजे से और उसके जाल से। और इस प्रकार से ये पता चलता है कि पोर्शिया ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था इस पूरे मुकदमे के दरमियान, पूरे मुकदमे के बीच में। और इस तरीके से ये जो ट्रायल सीन होता है ये भी ओवर हुआ था और ये जो रिंग एपिसोड की घटना थी ये भी पूर्ण हुई थी। ये थी पूरी एक कहानी, पूरा एक एपिसोड जो कि रिंग एपिसोड के नाम से जाना जाता है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द रिंग एपिसोड? डिस्क्राइब इन डिटेल और इन ब्रीफ, इन बोथ।